Hello everyone, welcome to yet another episode of Life Loosened Up. Today we have with us Monica Solanki slash Minty News with us to talk about Go Green initiative. One fine day I get a call from her and she said that she is little bit nervous, talking in front of camera. I invited her to the show and I asked her, come to my show and break that fear from your life. She was like, yeah, let's do it. So, thank you first of all, Monica, for coming to our show. Here are the key takeaways from this interview. Number one, how was she introduced to Go Green Initiative? Number two, how can you convince or educate anyone on Go Green Initiative? Number three, if you have a party at home, how can you organize a party keeping Go Green Initiative in your mind? Before getting into this interview, I have two facts to tell you. 75,000 trees are required to print Sunday edition of New York Times. Number 2. Do you know the energy saved from one recycled aluminum can operate television for around 3 hours? Yes, my friends. So guys, enjoy this show. If you like this show, please click on like button. If you have not subscribed to our channel, please do not forget to subscribe to our channel. Thank you so much. Enjoy your show. No, right? We are live now. Oh, we are We are live. sorry. Okay. We are live. Okay, I'm nervous. Just for my viewers, just to give a brief perspective, I get a message from Monica a few minutes back saying that she's nervous. Here you are, nervous girl sitting right in front of me. I just told her she will nail it off. Hey What do you think? people, I hope I'll nail it. You'll nail it. Hey, do you want to dance? नहीं यार. Let's okay. dance na yaar. How's the feeling now? Very good. Feel better? Yes. Awesome. So Monica, there are two things, effort and effortless. Go Green Initiative is an effort. So can you give me 3 effortless tips on how can I convince or educate people on going green? You are talking about effort and effortless. So basically, let me tell you, any kind of new habit which we want to start, we always have to make an effort. Starting from your exercise routine or waking up early in the morning, everything is an effort. So incorporate those things into your life. It's an effort. Going green, it's a habit. It's a new habit. See, देखो, first thing is practice. Why do you want to interview me on Go Green or recycling? Because you have seen me doing it, right? Because I'm practicing it. Yes. So first thing is practice. Second thing is to tell people about the benefit of that. I mean, you have to sell it. Can you tell me one benefit? Real quick. Quick benefit बताओगे? Like if you are installing a smart bulb in your apartment, in your house, it will benefit you. It will save the electricity for you. It will save your money. Okay. It is saving an environment. It is saving the environment, but it is saving your money as well. I see. If you will keep the running water from the tap, I mean, when you're washing hands or when you are washing utensils, if the water is running continuously, if you're not stopping it, then you are wasting water. You are harming the environment, but you are also paying extra bill for that water. Okay. So for your benefit, you have to make those changes. Like installing the thermostat, smart lights, and motion censored lights, and all those kind of things. So basically, those are your benefits. And environment का तो अलग से benefit हो ही रहा है. तो तूने कुछ इंस्टॉल किया क्या घर में स्मार्ट सिस्टम्स जो बोल रही थी, जैसे कि आई मीन जस्ट कंसीडर कि आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट सो मच इनटू इट, राइट? So are there any specific things that you think I should keep in mind, like plastic bottles, aluminum cans? What do you think about it? तो ये बहुत अच्छी चीज है. People are always concerned about their money, right? So they don't think about the long-term benefits. It's a psychology. We always think like, okay, चलो $1 की 10 plastic paper plates मिल रही है, ये भी ले लेते हैं. Let's not invest in ceramic plates. ठीक है? But in long term, ceramic plates will last for 20 years, 25 years, 30 years.
How about Mm-hmm. those plastic plates? How about those paper plates? Disposal. Mm-hmm. You have to continuously buy those items, right? Mm-hmm. तो लॉन्ग टर्म में तुम्हारा क्या बेनिफिट है, सेरामिक प्लेट्स या फिर डिस्पोजल? Mm-hmm. यू हैव टू डिसाइड, Right. बट यू हैव टू डिसाइड इट नाउ. मतलब अगर आपको मतलब लंबे टर्म का आप अभी सोचोगे, अगर आप इन्वेस्ट करते जाओगे, ये चीज मैंने अपने पुराने ऑफिस में करी थी. I told them their benefit. कि if you're Mm. investing in disposal rather than investing in wasting in disposal, Mm-hmm. invest in ceramic plates and Right. silverware. And did they accept it? Yes, they bought No. it. Oh, they bought it. Nice. Yes. And where did you learn this from? Like Going Green initiative? Did you learn it from your parents? Did you learn it from some of your friends? How was it? A lot from parents, a lot from parents. And there was one time before my brother's wedding, he told me that I want my wedding to be no plastic, Oh, is no it? waste. Yes, he told me. I mean, we couldn't do it because obviously इतना possible नहीं है कि आप Ah, glasses और वो बहुत सारी चीजें. But right. he really wanted to do that, and that triggered me. कि, oh my God, he can think about it, so why cannot I? Ah, nice. So, and मुझको देख के you are doing it, Varun is doing it, Varun के friends doing it. So it's Right. basically वो Amway की नहीं होती जो chain by chain ऐसे Chain एक बन रहा है करता है actually. तो 10 लोग, हाँ वैसे वैसे. It's like a tree, it's like branches, it's just like that chain system. Nice, so nice. और तू जो वो smart systems के बारे में बोल रही थी ना, कि Hmm. were you able to convince your mom and dad about the smart systems? Like, did they try to inculcate the smart systems in their life? See, they are in India, so I am not sure, like I am not sure कि वहाँ पे ट्यूब लाइट्स और जो उनको जिस टाइप की लाइट्स चाहिए होती है वो स्मार्ट कितनी आती हैं. पहली चीज तो ये वो मुझे नहीं पता है. अगर मुझे उसका फुल नॉलेज होगा तो ऑब्वियसली आई विल कन्विंस देम. कन्विंस की भी बात नहीं है, मैं जाके लगा दूंगी उनके फोन में ऐप डाल दूंगी एंड इट विल बी इजियर फॉर देम. ओके, सो Right. रात को it used to happen with me. Okay, I used to go to bed and then I used to say, Varun, please you go and switch off the light. मतलब आप एक बार बेड में घुस जाओ, कंफर्टर में घुस जाओ, उसके बाद में उठ के लाइट बंद करना कितना मुश्किल होता है. Exactly. Right. But here with the smart system, you just click it and it's off. बंद हो जाएगा directly ना. बंद हो जाएगा. You always have your phone with you, right, on your Right, side right, table. right. So just click the button and it's off. Click the button, Right. it's on. Awesome, awesome. So hypothetically सोचते थोड़ा, ठीक है, तेरे घर में पार्टी है, 25 लोगों को बुला रही है, ठीक है, और तुझे पता है कि हम लोग इतना पार्टी करते तो इतना सब प्लास्टिक वेस्ट होता है. पहले मैं इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन तू एक मुझे बोलेगी क्या कि मेरे घर में अगर 25 लोगों को बुलाता हूं मैं, so what are the things that I should keep in mind considering this Go Green initiative? Okay, so पार्टी है 25 लोगों की, 30 लोगों Yes, की. yes. पहली चीज ये है कि what I'll suggest is, जब मैंने अपने घर में लास्ट जनवरी को पार्टी करी थी, सब लेडीज को बुलाया था संक्रांति वाला, मैंने कुछ भी प्लास्टिक और कुछ भी डिस्पोजल यूज नहीं किया था. बेसिकली ग्लासेस से लेके प्लेट से लेके हर कुछ, ठीक है. हो सकता है कि 25-30 लोगों के जितना तुम्हारे पास सेरेमिक प्लेट्स नहीं हो, ग्लासेस नहीं हो, Right. तो व्हाट यू कैन चूज इज यू कैन चूज द डिस्पोजल बट व्हिच आर इजीली Reusable? no decomposable. Okay. So they're plastic plates, they're paper plates, they're styrofoam. Styrofoam तो बहुत बेकार है, वो डिकम्पोज होने में बहुत टाइम लगता है. प्लास्टिक अगेन you can recycle it. I mean, you have to clean it and then recycle it. But उससे अच्छा ऑप्शन है पेपर प्लेट्स का, which can be decomposed easily and comparatively environmental friendly. राइट. मुझे बोलो कि मुझे कैसा पता चलेगा कि क्या डिकम्पोज हो सकता है और क्या डिकम्पोज नहीं हो सकता है. इज देयर एनी वेरी वे दैट यू हैव स्टिक्ड इनटू योर माइंड कि व्हिच इज इजीली डिफरेंशिएट, आई मीन मैं इजीली डिफरेंशिएट कर पाता हूँ कि ये डिकम्पोज होता है, ये डिकम्पोज नहीं होता है, कुछ आइडिया है दिमाग में? यस, बिल्कुल. पहली चीज तो ये थोड़ा सा इसमें रिसर्च करना पड़ेगा. यू हैव टू इन्वेस्ट सम टाइम इनटू इट. अच्छा. एंड वॉलमार्ट टारगेट थोड़ी सी तो रिसर्च करनी पड़ेगी, वरना अच्छा. मेरे जैसे दोस्त हैं तो वो एक बेनिफिट है. आई कैन टेल यू. तो मुझे एक बोलो, मैं एक सिंपल बोलता हूँ, मैं हमेशा देखा है, मतलब अगर कुछ तो मैं पार्टी में जाता हूँ और उधर वो प्लास्टिक सब दिख रहा है, सो विल यू बी पिकी देयर
कि नहीं बाबा मुझे ये नहीं खाना है, मुझे वो स्टील के प्लेट्स ही दो, सिरेमिक के प्लेट्स ही दो. I do that, you know that. Yeah, I you mean, do I that, I but do लेकिन that. वो कहाँ से आता है? Because I wanted to do it, but for a second I thought कि यार मैं इतना पिकी क्यों हूँ, इतना पिकी क्यों हो सकता हूँ इनके सामने? Why to just show it off? ये show it off वाला थिंग है ना, ये मुझे हमेशा डर हाँ. लगता है कि सबके सामने क्यों दिखाऊं कि बाबा मैं ये सब कर रहा हूँ, राइट? तो तुझे क्या लगता है कि हमें तू तू डायरेक्टली आती है, नहीं भाई मुझे एक ही प्लास्टिक प्लेट नहीं है, मुझे कुछ तो दूसरा दे दो, डायरेक्ट बोल देती हो, Mhm. नहीं तो कुछ नहीं हुआ तो एटलीस्ट यू बोथ हैव इट टुगेदर इन अ सिंगल प्लेट, Mhm. राइट? और Definitely. ये शेयर करते हैं तुम लोग. Mhm. तो Mhm. मतलब वो कहाँ से आता है यार एकदम डायरेक्टली बोलने के लिए? So अगर नुपुरा कार ड्राइव कर रही है, उसने सीट बेल्ट नहीं पहना है, हाँ. would you say something or in front of everybody, और कुछ भी उसके साथ कुछ गलत हो रहा है, would you raise your voice? आई वुड कंट्रोल माई सेल्फ फर्स्ट, लेकिन एक एक बार कंट्रोल होता है, एक एक बार होता नहीं, बट 95% ऑफ द टाइम आई कंट्रोल, राइट? लेकिन बट अगर सीट अगर बेल्ट पहन नहीं रही है वो, तो आई वुड डेफिनेटली रेज माई वॉइस कि वो नुपुरा बेल्ट पहन ले. वो इतना कॉमन हो गया तुम्हारे लिए, राइट, कि सीट राइट. बेल्ट पहनना ही है, वैसे ही मेरे लिए हाँ. कॉमन हो गया. एंड द मेन थिंग, मैं ऐसा इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा पीछे जाती हूँ. जो चीज हमारे पेरेंट्स ने या पुराने लोगों ने करी होगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग फैल रही है, इतना ज्यादा बढ़ रहा है, हरिकेन्स, फ्लड्स और ये सब चीजें जो हो रही हैं, इट्स बिकॉज ऑफ अस, राइट. फैक्ट्रीज इतनी सारी, इतना सारा वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, इतना सारा प्लास्टिक आ रहा है, चीजें डिकम्पोज नहीं हो रही हैं. इन सब वजह से आज ग्लोबल वार्मिंग हो रही है. राइट. आज तुम ये करोगे तो तुम सोचो तुम्हारे 10 साल बाद जाके जो तुम्हारे बच्चे हैं, थिंक अबाउट देम. राइट. राइट. क्या तुम चाहते हो उनको इतना बुरा नहीं. फ्यूचर मिले, राइट? आज जिस घर में तुम, अगर उनका घर, आई रिमेम्बर मेरे पुराने ऑफिस में देयर वाज दिस लेडी, उनका जो सन था वो फ्लोरिडा में रहता था, एंड लास्ट ईयर एक हरिकेन आने वाला था जो नहीं आया, एंड शी वाज रियली वरीड कि उनके बेटे ने रिसेंटली घर लिया एंड इट्स इन दैट जोन, and she was really worried, and that lady never took a silverware. She always used plastic spoon. Oh, I see. Ever she never, I have never seen her using silverware in office, जबकि हमारे पास सब होते थे. So just think about your kids, think about your child, think about their future. Just like you invest in their future, it's just that investing in their future. राइट. लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि यू ट्राई टू एजुकेट समवन एंड द अदर पर्सन इज नॉट लिसनिंग टू, हे यार मोनिका क्या तो चुप मत बोल, लाइक यू आर नॉट, वो ऐसा कभी कुछ एक्सपीरियंसेस है Always. तेरे? तो एक कौन सा तो एक्सपीरियंस यू वांट टू शेयर, यू डोंट हैव टू ड्रॉप द नेम्स, बट एटलीस्ट यू कैन जस्ट टेल अबाउट दैट एक्सपीरियंस कि कैसा रहा वो एक्सपीरियंस. मेरा फ्रेंड जसमीत. ओह जसमीत, ओके गो अहेड. जसमीत No, भाई देख रहे हो basically ना? See, उसने करी है मास्टर्स इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो ही हैज मोर नॉलेज देन मी, दैट्स फॉर श्योर. बट देयर समथिंग जिस पे वो मुझे बोलता है यार ठीक है ना, लाइक जो मैं रिसाइकल करती हूँ, देयर मिथ कि रिसाइकल जो हम करते हैं, देयर हाफ ऑफ द आइटम्स दे आर नॉट going in the recycling bin and they are not getting recycled actually by the government. क्यों होता है ऐसा? He does. सॉरी फॉर दैट क्वेश्चन, बट क्यों ऐसा होता है? इट्स बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, मतलब ये कंट्रोवर्सी है. अब आई डोंट नो एग्जैक्टली, कुछ Okay, स्टेट्स में cool. एक्चुअली हाँ रिसाइकल होता है, आप जाते हो रिसाइकलिंग बिन में डालते हो सब चीजें, बट अगेन वो नहीं होता रिसाइकल, तो I see. वो नहीं करता है, वो सिर्फ हर चीज डस्टबिन में डालता है. I see. there was an article I was reading जिसमें था कि लोग एक्चुअली बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे, क्योंकि जब उनको पता चला, जब उनको किसी ने बताया कि आप जो भी रिसाइकल कर रहे हो, it's not getting recycled actually. I see. Okay. तो उन जैसे उन लोगों को धक्का लगा कि ऐसे कैसे, मतलब हम इतना सब क्लीन करके सब डिफरेंट, मतलब वेस्ट अलग और प्लास्टिक अलग करके हम डालने जा रहे हैं प्रॉपर बिन्स में, उसके बाद में भी कैसे रिसाइकल नहीं हो रहा है. तो ही हैज मोर नॉलेज अबाउट इट, बट आई स्टिल थिंक कि एटलीस्ट हम हमारा जॉब कर रहे हैं. Okay. आगे क्या हो रहा है हमको नहीं पता, बट एटलीस्ट हम हमारा काम तो कर ही रहे हैं. वेरी नाइस. तो गो ग्रीन के बहुत सारे मिथ्स है, राइट?
अभी एक तो मिथ बोला है, तो और कुछ तो मिथ दिमाग में आता है क्या? There's another thing. लोगों को लगता है कि disposal use करना is easier and environmental friendly rather than wasting water धोने के लिए, जो अपने dishes धोते हैं अपन. और ये चीज टीनेजर्स में, अमेरिकन टीनेजर्स में मैंने ज्यादा सुनी है, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि आप पानी भी तो वेस्ट कर ही रहे हो ना धो के, उसमें आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो, तो क्यों, why not accept this, which is a myth, क्योंकि water is easily recyclable, right so that is another myth. और कुछ मिथ लगता है कि कुछ है, रह सकता है? I don't think of anything else. जो एल्यूमिनियम कैन्स रहते हैं, जो डाइट कोक के या पेप्सी के व्हाटएवर इट इज, वो रिसाइकल हो सकता है क्या? They do. And we'll have to rinse it through water once before we recycle it, or we'll have to just directly we can just dump it in It the is recycle bin? always better to clean whatever you're putting in the recycling bin, but वो होने के बाद में भी वहां पे भी clean होता है, but वो उतना properly नहीं होगा जितना आप clean करके भेजोगे, तो it's always आप वहां पे पानी वेस्ट नहीं कर रहे, आप बिल्कुल हल्का सा रिंस कर रहे हो उस चीज को, आप हाथ धोने जाते हो बस हल्का सा रिंस करके डाल दो, right it's just okay. like that. और ये क्वेश्चन जरा सा हैवी है, so sorry for that question, लेकिन ये सच्ची में you are kind of go green initiative supporter, or it is a OCD thing? It's not OCD at all. Okay, so it's not OCD at all. Have you tried to introspect yourself ever in your life? Ki, is it an OCD or it is just because you support Go Green? I've never thought about that, but right now I don't think it's OCD, because you know how I'm into fashion as well. Right. मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं कि फैशन इंडस्ट्री इतनी फास्ट पेस है अभी इस एज में, इस स्टेज में, जो भी नए कपड़े बनते हैं, जो डिस्कार्डेड कपड़े होते हैं उनको जला दिया जाता है, उनसे कितना ग्लोबल वार्मिंग होता है, उससे आप अपना कार्बन फुटप्रिंट आप देख सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं, तो आई एक्चुअली स्टॉप बाइंग स्टफ. पहले मेरी आदत थी अमेज़न से मंगवाने की, रिटर्न करने की, देन जब मैंने उस चीज के बारे में और ज्यादा ध्यान दिया, पढ़ा कि अगर मैं रिटर्न कर रही हूँ तो उसमें कितना कार्बन इमिशन हो रहा है, क्योंकि वो चीज वापस ट्रक में भर के वेयर हाउस में जा रही है, उतना उनका जो फ्यूल लग रहा है, वो सारी चीजें, आई स्टॉप डूइंग इट. आई जस्ट डू विंटर शॉपिंग राइट नाउ, उसी से मैं अपना मन भर लेती हूँ, अदरवाइज इफ आई actually want something, then only I buy. Right. और ये लास्ट क्वेश्चन है मोनिका, ये सब करने से do you see any changes in your life? Like day to day लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी कुछ बढ़ती है, ऐसा कुछ होता है लाइफ में, ऐसा कुछ जैसे कि कुछ तो अच्छा करो, गो ग्रीन टाइप करो, राइट? फॉर एग्जाम्पल कुछ तो तुझे करना है, कुछ तो डंप करना है, एंड इट टेक्स यू अराउंड 5 to 10 minutes to get there, dump it, come back. So होने के बाद, काम होने के बाद, do you feel एक काइंड ऑफ डोपामिन हिट ऐसा हो जाता है कि ऐसा कुछ होता है दिमाग में, यू फील गुड टाइप्स, सेंस ऑफ अचीवमेंट, नाइस. सो कैसा फील होता है? आई मीन, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस और डू यू वांट टू थिंक अबाउट इट कि ऐसा कभी हुआ था तेरे लाइफ में? जब लोग उस चीज के बारे में बात करते हैं, लाइक यू आर टॉकिंग अबाउट इट कि आई एम डूइंग समथिंग गुड, अप्रिशिएट करता है कोई, तब बहुत अच्छा लगता है. उसके अलावा सेल्फ अप्रिशिएशन नाम की भी चीज होती है जो मुझे लगती है हमेशा दैट आई एम मैं एक स्टेप बढ़ा रही हूँ एनवायरनमेंट को ठीक करने के प्रति. मुझे हमेशा ये लगता है. Those were the only questions, Monica. Thank you so much for coming into my show. Of course. Thank you for inviting me.